Yes, Chandramohan ji, good evening. Good evening, sir. So, may I get your introduction, sir? Where you are from, what your I am profession? from Bangalore. We are running a fitness studio in Bangalore. Fitness studio. Yeah, before I was working for Kirloskar Motors. I done my engineering. I left the job now. I'm into fitness now completely. Hmm. So, we are from the same background, same history we have. Yeah, But I am a biomedical engineer. I I am never actually did a automobile. job. I worked for 10 years. Then 2018, say we are into fitness now. Great, great. So, when we are in the crisis of health, Mm. so it is better option to keep ourselves in the profession of health. Ah, Yes. So now you are thinking to learn the yeah, manual therapy. therapies? Yeah, correct, correct. Yes. Because again, we are into fitness industry. Maybe it will be help. It will be a next help for us for that. Then also we thought it will be one more plus point for if we include in the business. Yes, sir. As per the business concern, Yeah. the manual medicine is most demanding thing nowadays. Means I'm getting feedbacks from physiotherapists also Mm. that patient used to ask them, are you able to do the chiropractic or not? Mhm. So awareness is creating, but just generating a sound is not a chiropractic, correct? Correct. Yeah. So with the help of mobilization or indirect techniques, we can Uh-huh. achieve the alignment. Yeah. Only alignment is not the solution of the root cause. Okay. It's a temporary, correct? Mhm. So on this point only, we'll start our session. So let me welcome everyone who has joined in time. I welcome you all. And today we have not promoted so much to this webinar because I want to see how many people are curious and keen to learn these things. So on 11th hour, I put updates on the channel. And those who have joined, I congratulate all of you. So may I request others to keep your mic mute. When you want to discuss, then only you can unmute mic. Because today's session, I want to be a more interactive session. There will be no any kind of PPT or anything. Okay. So you all people are following me since months, years. So my updates are getting on WhatsApp group already. You all joining from the WhatsApp group only. So our upcoming batch is here you can see our upcoming batch is from 3rd to 5th January 2025. And we used to conduct trainings at Nasik only. And it's good opportunity for you to visit the Nasik, the Trambakeshwar, to experience the atmosphere. And in this season, you must visit the Nasik because Nasik is the country's most compatible place to live for a human being or any animal or live thing. So, for this workshop, I have booked a whole resort near the valley of Trambakeshwar to give some spiritual experience and to experience the peaceful vibes of Trambakeshwara and the blissful atmosphere of it. And another thing is, when we all get locked in that property, I have booked a whole property. There will be no any other booking on these days over there. So our motive is to deliver you more. My both OPDs of cities will be kept down during these 3 days, and we will spend all time with together so that we can focus on much more learning, much more delivery, and much more give and take from each other. Everyone has his own expertise, own experience. So it will be a very great session. And
Another thing, we have a Dr. Neeraj Shah with us. He is our core trainer and he have a lot of expertise of osteopathy, ergonomics, postural correction. He is podiatric also, and he is a BNMIS doctor, and we keep on learning the new things. Okay, so our Divine Touch is the only center which brings all international manual medicines under one roof, and we have a expert who have all kind of expertise in a single hand. So that's why we can identify, diagnose the root cause and work on this only. So the same approach I want to penetrate to the downline of Divine Touch. And our motive, our goal is to create 5,000 plus healer for the society till the year 2035. And we have to gift a pain-free life and holistically healed life through all aspect of mind, body, and soul to the 2 crore plus people from India and out of the India. And nowadays we are also getting opportunities to serve people out of the India. Online, through online, we are already serving, and through offline events also, very soon we are going to uh, out of the India to serve the society. So these opportunities are coming to us, but before these opportunities, we had a journey of too much struggle since last 2.5 years. There are so many people who are following me the from my first webinar, so they might be know the journey. And I welcome Dr. Neeraj Shah. Neeraj sir, are you there? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Welcome, sir. Thank you, sir. So, sir, I want few lines from you regarding the session or what exactly, not only the session, the process of learning. Just learning, as Chandu sir said that it's a good when I get these tactics also in my hand and I can boost my business through it. Definitely. But what is the root cause healing? What things we must know about to the human body or all three systems as we are covering in our workshop, the skeletal, muscle, and visceral systems, how they are interrelated with us, how body is one unit, and how the whole world is treating the symptom, and also the painful soul also want that doctor must treat my symptom. So on this topic, I want you to highlight, sir. Yeah, good evening, everyone. Good evening. झाड़ेगा तो वो तो सर के ऊपर जाएगा. Root cause healing is, see, the name is root. When we see what is the root, tree. When we plant a tree, where is the root? It's behind, it's down the ground. Is everything our problems that are we occur aches and pain, all problems are connected to a feet, because feet are the foundation of our body. So where patient comes in our clinic and he complains is suffering from back pain or knee pain or shoulder pain or neck pain. So complaint is the symptomatic pain, but the root cause is, it's always root cause is far from the site of the pain. That means if the patient is suffering from medial side the pain, knee pain, then the root cause is far from it. Yes. Okay, some are saying in Hindi, so we will conduct it in Hindi, sir. Yes, both language will conduct. Sir is from Bangalore, that's why I have started in English and I forget. No. So Even I can we understand Hindi. You can, can speak in Hindi. No issues. yes, sir, yes, definitely. तो बॉडी एक यूनिट कैसे है? तो बॉडी एक यूनिट मतलब हम अगर शॉपिंग को जा रहे हैं तो शॉपिंग को तो हमें किस चीज की जरूरत है? सिर्फ सिर की जरूरत है और हाथों की जरूरत है. तो ऐसे कभी हो सकता है क्या हम सिर्फ सिर और हाथ साथ में शॉपिंग को लेके जाएंगे और हमारा लोअर बॉडी जो है वो घर पे छोड़ के जाएंगे?
या ऑफिस में जाना है, वहां पे तो सिर्फ बैठ के रहना है, वहां पे पैरों का काम है और हाथों का काम है और गर्दन का काम है, तो फिर हम हमारी कमर और हमारा थोरेसिक एरिया जो है वो घर पे छोड़ देंगे? ऐसे तो कभी होता ही नहीं है। सो हम जहाँ जाएंगे बॉडी वन यूनिट है। सो बॉडी वन यूनिट है, तो अगर नी में पेन है तो आपके हिप में भी पेन है, आपके प्लांटर फेशिया में भी पेन है, आपके नेक में भी पेन है, क्योंकि बॉडी वन यूनिट है। तो इट्स ऑलवेज पेन होती है, बायोमैकेनिक्स होते हैं। आजकल सबसे यूनिवर्सल प्रॉब्लम जो है बैक पेन और नेक पेन का है, बिकॉज ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। बहुत सारे लोग जो है वो नेक पेन और बैक पेन का ट्रीटमेंट कराते हैं, सफर भी करते हैं, डिस्क बल्ज होता है, हार्निशन होता है, प्रोट्रूशन होता है, और वो ट्रीटमेंट कराते हैं, फिजियोथेरेपी कराते हैं, आयुर्वेदिक कराते हैं, एलोपैथी कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे, आज सबसे यूनिवर्सल प्रॉब्लम जो है, जो हर किसी को है, वो है कॉन्स्टिपेशन का। एवरीवन इज फीलिंग कॉन्स्टिपेटेड, ब्लोटेड, एक्सेस गैस, पेट साफ नहीं हो रहा है, एसिडिटी है। ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है आजकल। और 70% बैक पेन का कॉज जो है वो एक्सेस ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन होता है। डिस्क बल्ज का भी जो रीजन है वो कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि एक्सेस प्रेशर बिल्टअप होता है। हवा, हमारा जो बॉडी है वो 5 तत्वों से बना है, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी। तो इसमें से कोई भी एक इम्बैलेंस होगा तो हमारे बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। हमको वोमिटिंग होती है, नौशिया होती है, हम क्या करते हैं, एंटी वोमिटिंग लेते हैं, तो हम वो सरपेस कर देते हैं। लेकिन वॉमिटिंग क्यों हो रही है? बिकॉज बॉडी जो है, बॉडी इज नॉट एक्सेप्टिंग द गार्बेज विच यू आर कलेक्टिंग इन योर बॉडी। तो वो गार्बेज जो है वो डंपिंग ग्राउंड हो रहा है बॉडी, तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, सो इट्स थ्रोइंग इट आउट। और हम क्या कर रहे हैं, उसको सरपेस कर रहे हैं। तो वैसे ही जब पेन होता है तो हम क्या करते हैं, हम पेन किलर लेते हैं। हम सबसे पहले हमारे फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट करते हैं नेक पेन के लिए। जब नेक पेन होता है तो फिर वो हमको राय देते हैं कि आप पिलो यूज करना बंद कर दो। लेकिन पिलो यूज करना सच में आपको हेल्पफुल है क्या? एक्चुअली गर्दन दर्द क्यों हो रहा है, उसके बायोमैकेनिक्स करेक्ट है या नहीं? उसका लो आर्च है, अगर पेशेंट का लो आर्च है, फ्लैट फीट है, तो उसका पैर मेडियली कोलैप्स होगा। अगर मेडियली कोलैप्स होगा तो नी इंटरनली रोटेट होगा, हिप एक्सटर्नली रोटेट होगा, तो काइनेटिक चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ग्रेविटी मेंटेन करने के लिए हमारे शोल्डर जो है वो प्रोट्रूड हो जाएंगे, ऐसे नेक फॉरवर्ड एक पोस्चर आ जाएगी। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि बॉडी आप करेक्शन नहीं कर रहे हो, इसलिए बॉडी जो है सेल्फ करेक्शन करेगी ग्रेविटी मेंटेन रखने के लिए। और हमारे सारे ऑर्गन जो है वो फ्रंट साइड में ही होते हैं, तो वो बॉडी जो है प्रोटेक्टिव जोन में चली जाती है। क्योंकि बायोमैकेनिकली 60% वेट जो है आपका हैंड फुट पे जाना चाहिए, 40% आपके फोर फुट पे जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका फ्लैट फुट है तो वो वेट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगा, वो 80-20 होगा या 70-30 होगा। तो इन बोथ द केस जो है, आपका वेट अगर हाइंड फुट पे 80% बढ़ रहा है, सो आप पीछे, वेट आपका बॉडी का वेट पीछे जा रहा है, तो आप गिरो नहीं। इसलिए ग्रेविटी मेंटेन रखने के लिए आपका पोस्चर जो है वो काइफोटिक हो जाएगा, राउंडेड शोल्डर हो जाएंगे, फॉरवर्ड नेक पोस्चर हो जाएगा। और इन सब चीजों की वजह से हमारा विसरल फेशिया जो है वो रिजिड हो जाएगा। जैसे ही हमारे ऑर्गन, हमारे हमारे जॉइंट्स की मूवमेंट होती है, वैसे हमारे हर एक ऑर्गन की एक डेजिग्नेटेड मूवमेंट होती है। वो ऑर्गन जो है इन 24 आवर्स वो एक डेजिग्नेटेड मूवमेंट करते रहता है। जब उसकी डेजिग्नेटेड मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई तो उसका फंक्शन रिस्ट्रिक्ट होगा। उसका फंक्शन रिस्ट्रिक्ट होगा तो फिर हमको बीपी, डायबिटीज, थायराइड, पीसीओएस, पीसीओडी, एन नंबर ऑफ जो ये डिसीज है, कैंसर, ये सारी बीमारियां है ही नहीं। दिस इज कम्युनिकेशन। ये बॉडी का कम्युनिकेशन है आपके साथ कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। और वो रॉन्ग क्या है वही हमको आइडेंटिफाई करना है, जो हम बिल्कुल भी नहीं करते। हम, हमारी शुगर बढ़ रही है, हम लाइफ टाइम मेडिसिन लेते, थायराइड बढ़ रहा है लाइफ टाइम मेडिसिन लेते, बीपी शूट हो रहा है लाइफ टाइम मेडिसिन लेते। लेकिन वो क्यों हो रहा है उसके जड़ तक जाते ही नहीं है। तो हम जो है द डिवाइन टच, हमारा ये मोटो ही है और हमारा टैगलाइन ही है, वी डोंट ट्रीट द सिम्टम, वी ट्रीट द रूट कॉज। अगर पेशेंट हमारे पास नी पेन का भी आता है तो हम उसका फुल बॉडी इवोल्यूशन करेंगे। हम उसका सर्वाइकल से लेके तो फीट तक, लीवर से लेके तो ड्यूडेरम तक,
सब कुछ चेक करेंगे, क्योंकि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। और हमको अगर पेशेंट को 100% रिलीज देना है पेन से या उसके प्रॉब्लम से, तो हमको बॉडी एज इन वन यूनिट, ऑस्टियोपैथी में बॉडी इज वन यूनिट, तो हमको पूरा बॉडी ट्रीट करना पड़ेगा। Sir, अगर can आपका you बैक पेन है, sir can you explain this case in front? या The foot posture scanning we have did, and the यस, person have the scoliotic curve. या Yeah. so uh, this is patient. He is an by profession, he is an uh, He is a IT professional है। manufacturing. He is in a हाँ, manufacturing industry, yes, and here we have did a foot scanning for the person, yes, and you can see the 72% of load is going on hind foot, right hind foot, and only 27% is going on a forefoot. forefoot। अगर आप Correct? देखोगे यहाँ पे फिंगर्स, हमारे फीट को 5-5 उंगलियां होती है। अगर आप क्लोजली मॉनिटर करोगे, उसके लेफ्ट पैर की बाकी 4 उंगलियां एंगेज ही नहीं होती है। ये क्यों है? क्योंकि उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हैंड फुट पे है। सो उसका पेल्विस एंटीरियर शिफ्ट होगा। आप अगर क्लोजली मॉनिटर करोगे उसके बिग टो और सारे फिंगर्स को, दे ऑल आर क्लस्टर्ड, all are clustered. It is because of the industrial shoes Shoes, he is safety wearing, the shoes. tight shoes Yes. he is wearing. Please do not annotate. Who is Abhishek Kumar? What you are doing, sir? So he is in clear case of back pain, knee pain, and hip pain. So he is taking treatment for this from past 3 years. But when he consulted us, we did his foot scanning, we did his pusher analysis, and then we released his complete biomechanic chain, and then we recommended him orthotics, arch support, heel raise, and within the 3 to 4 sittings, his pain was almost 70-80% vanished, gone. You can see how pain elevates upward in the body. Everything starts with your feet. As I told you, feet are the foundation of our body. So here this feet you can see the collapsing feet. There is a low arch and feet is rotating inward side. So that's why what happening. Sir, It's explain always, this unstable diagram. ये जो आप बिफोर अनसपोर्टेड हो, आप हमेशा देखोगे कि इट्स ऑलवेज पेन जो होता है ना, इट्स ऑलवेज वन साइड इज ओवर वर्किंग एंड वन साइड इज अंडर वर्किंग। अभी ये जो है इनका राइट लेग जो है वो कोलैप्स्ड है, लेफ्ट लेग, Left ये leg. लो आर्च है। तो लेफ्ट लेग कोलैप्स होने की वजह से, लो आर्च होने की वजह से उनका नी जो है वो मिडिली शिफ्ट होगा, इंटरनली एक्सटर्नली रोटेट होगा। आप देखोगे कि हिप जो है फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में एलिवेट होगा, और एक जो है वो कंपनसेट होगा। ये हिप जो SISPA जॉइंट भी है, वो भी आप देखो। हम पुष्पा पिक्चर अभी रिलीज हुआ है, उसमें भी आप देखोगे कि उसका जो वॉकिंग पैटर्न है, वॉकिंग गेट है, और उसका स्टैंडिंग पोजीशन, वो हमेशा उसका एक शोल्डर जो है वो ऐसे ही रखता है। सो जब ये होगा तो पोस्चरल जो कंपनसेशन करना पड़ेगा बॉडी को, और जब एक्सटर्नल पोस्चर कंपनसेशन होगा तो इंटरनल ऑर्गन्स भी कंपनसेशन होगा। ये भी देखो एरो है शोल्डर लेवल, तो शोल्डर लेवल जो है वो ड्रॉप हो गया, लेफ्ट साइड एलिवेट हो गया, राइट साइड ड्रॉप हो गया। सो राइट साइड ड्रॉप हो गया तो हमारा लीवर कहाँ पे है? राइट साइड में है। तो जब लीवर राइट साइड में है और ये कंप्रेशन हो गया तो लीवर कंप्रेशन में हो गया, फिर राइट किडनी भी कंप्रेशन में चली गई, तो वो ऑर्गन्स की भी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। सो अगर हम प्रॉब्लम कोई भी हो और उसके फीट को ट्रीट नहीं करते तो आपको रिजल्ट जो है वो आएगा ही नहीं। आप ट्रीटमेंट करोगे सिम्टोमेटिक, उसको अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका पेन जो है वो फिर से आएगा और उसका जो इंटेंसिटी वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने बायोमैकेनिक्स करेक्शन की नहीं है। सो उसका वेट शिफ्टिंग फिर से वो मिडिली शिफ्ट हो रहा है, फिर से उसका हिप जो है एंटीरियर टिल्ट हो रहा है, नेक फॉरवर्ड नेक हो रहा है। तो ऑल दिस
थिंग्स जो है ये इट्स ओनली बिकॉज ऑफ फीट। और यहाँ पे जो है जो आफ्टर का इमेज है वहां पे हम देखेंगे कि उनको हमने एक आर्च सपोर्ट दे दिया। तो जैसे ही आर्च सपोर्ट दे दिया तो उनके बायोमैकेनिक्स है वो करेक्शन हो गई। सो बॉडी जो है अलाइन पोस्चर में, आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखोगे, एवरीथिंग वुड बी इन And अ sir, in अलाइन। case of chiropractic, yeah, alignment of body, we used to treat the cervical pain patient, not touching to the cervical, but manipulating his or her feet. We just mobilize the feet. Yeah. सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। Ah. Just a minute, I am muting all. Okay. So, Neeraj sir, unmute yourself. अगर सर्वाइकल में प्रॉब्लम है तो जो चीज पहले से ही तकलीफ में, देर इज नो पॉइंट इन ट्रीटिंग इट, क्योंकि वो ऑलरेडी तकलीफ में है। वो तकलीफ में क्यों है, हम अगर उसके रूट कॉज पे जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको वहां पे हाथ ही लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो हम ट्रेनिंग भी देते हैं और हम जो ट्रीटमेंट भी करते हैं वहां पे हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। अगर सर्वाइकल का प्रॉब्लम है हम सर्वाइकल को हाथ भी नहीं लगाएंगे और उसका फीट मोबिलाइज करेंगे और उसका सर्वाइकल का पेन कम होगा, सर्वाइकल का रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मैजिक भी नहीं है, हम सिर्फ लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको बैक पेन है, इवोल्यूशन किया, असेसमेंट किया, हम आपका एब्डोमेन विसरल फेशिया रिलीज करेंगे और आपका बैक पेन कम हो जाएगा। आपका बैक का रेंज, हिप एक्सटेंशन, एडक्शन एबडक्शन जो है उसका रेंज बढ़ जाएगा। तो ये सारी जो चीजें, शोल्डर है, राइट शोल्डर में पेन है, हम शोल्डर को हाथ भी नहीं लगाएंगे, हम लीवर को मैनिपुलेट करेंगे, मोबिलाइज करेंगे, राइट शोल्डर का रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगा, क्योंकि एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। जब तक हम विसरल, फेशियल और मस्कुलोस्केलेटल ये तीनों सिस्टम जो है वो ट्रीट नहीं करेंगे, हम पेशेंट को 100% रिलीफ नहीं दे सकते, हम उसका रूट कॉज ट्रीट नहीं कर सकते। और अबो ऑल दिस, अगर हम, आप विसरल कर लो, फेशियल कर लो, आप मस्कुलोस्केलेटल कर लो, कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट कर लो, विसरल मैनिपुलेशन कर लो, मोबिलाइजेशन कर लो, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ऑरिक्यूलर, जो भी थेरेपीज है वो सब कर लो, अगर आप फूड बायोमेकेनिक्स करेक्शन नहीं करते हो तो वो पेशेंट जो है फिर से वो तकलीफ उसकी फ्लेयर ही होगी। क्यों? क्योंकि अपना सब कुछ जो है बॉडी का, इट्स एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन फीड। हमारे ऑर्गन के सारे रिफ्लेक्स जो है फूड रिफ्लेक्सोलॉजी के हिसाब से सारे रिफ्लेक्स जो है हमारे पैरों में है, हमारे फेशियल लाइन का कनेक्शन हमारे पैरों में है। सो इट्स ऑलवेज स्टार्ट, एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ फीट एंड एंड्स विथ फीट। हमारे हर बीमारी की जड़ जो है वो पैरों से ही शुरू होती है और खत्म भी पैरों में ही होगी। यस सर। तो ये एस्पेक्ट भी आपको ये वर्कशॉप में जो है वो सीखने मिलेगा। ओके। तो अभी मैं पूरा अप्रोच जो है ना वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम किस तरीके से कैंप कंडक्ट करते हैं। और आपको पूरे इंडिया में या कहीं पे भी जाओ, अंडर वन रूफ एक ही वर्कशॉप में ये तीनों चीज़ों पे काम साइमल्टेनियसली करने के लिए नहीं मिलेगा। सो वी आर वर्किंग ऑन visceral system also, skeletal also, and muscle release and muscle toning also. So we are rehabilitating muscles also. So ये तीनों सिस्टम पे काम होगा और तभी जाके वो रूट कॉज हील होता है। दैट्स वाई आवर सेंटर इज ह्यूमन गैरेज। एंड वो पेशेंट बार बार हमारे पास ना आए, इसके लिए हम उसका फुट पोस्चर एनालिसिस करके वो जो कार है या फिर जो भी मशीन है, जैसे हम उसका कार का व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग करते हैं, तो मैंने जो अलाइनमेंट करके दिया है पेशेंट का वो मेंटेन रहने के लिए फिर हम उनका बेस जो है ना वो स्टेबिलाईज कर देते हैं। तो जिससे क्या है वो रिकरिंग सिम्टम्स क्रिएट नहीं होते हैं। और यही चीजें है ना बाकियों से अलग बनाती है हमें, बिकॉज हम वो रिकरिंग मीटर के लिए नहीं काम कर रहे। हमारा टारगेट बहुत बड़ा है, 2 करोड़ लोगों तक हमें पहुंचना है। तो ज्यादा से ज्यादा नए लोगों तक हम कैसे पहुंचे, यही हमारा मोटिव रहता है कि एक बार पेशेंट आ गया तो उसको ठीक तो करते ही है, अलाइनमेंट भी हो जाता है और उसको ऐसा कर देते कि बार बार उसको आने की जरूरत ना पड़े, उसको एजुकेट भी कर देते।
Yes, Bushra ma'am, you can ask queries if you have. मैंने उनका जवाब दे दिया है. Okay, okay, great. Just a minute, I'll share the audio. This is the case. The patient has been suggested neck operation. One spine operation is already done, and the another operation was suggested. So referral was from the BNI group. चॅप्टरला आहात ब्रावो चॅप्टरला तर तुम्ही आपल्याकडे तुमच्या मम्मीसाठी ट्रीटमेंटसाठी आले. मॅडम तुम्हाला काय त्रास होता, काय सजेस्ट केलं होतं तुम्हाला? मला मानेचा त्रास होता आणि आम्ही MRI केला तेव्हा डॉक्टरने आम्हाला ऑपरेशनच सजेस्ट केलं होतं की ऑपरेशनच करावं लागेल असं. तर आम्ही 3-4 डॉक्टरांची ओपिनियन घेतली. ते 3 डॉक्टरांनी ऑपरेशनच सांगितलं होतं. मग त्याच्यानंतर आम्ही थेरपी आणि हे चालू केलं. Shit. नमस्कार सर, आपल्याकडे आज माळी सर आलेले BNI मुळे. नमस्कार सर, आपल्याकडे आज माळी सर आलेले BNI मुळे आपल्याकडे. तुम्हाला काय त्रास होता, काय सजेस्ट केलं होतं तुम्हाला? मला मानेचा त्रास होता आणि आम्ही MRI केला तेव्हा डॉक्टरने आम्हाला ऑपरेशनच सजेस्ट केलं होतं की ऑपरेशनच करावं लागेल असं. तर आम्ही 3-4 डॉक्टरांची ओपिनियन घेतली. ते 3 डॉक्टरांनी ऑपरेशनच सांगितलं होतं. मग त्याच्यानंतर आम्ही थेरपी आणि हे चालू केलं. पण मग इथं 3 सेटिंगमध्येच मला पूर्ण बरं वाटायला लागलं. आता मला म्हणजे काही त्रास नाही मला आता. एकदम ओके झालं. आणि ते पण विदाउट मेडिसिन, विदाउट मेडिसिन. कुठल्या प्रकारचे मेडिसिन मेडिसिन की जिथं दुखतं त्याच्यावर कुठली तरी मला लावा असं पण काहीच नाही. आणि जेव्हा तुमची पहिली सेटिंग घेतली तेव्हाचा पेन, दुसऱ्या सेटिंग नंतर आणि तिसऱ्या सेटिंगला तुम्ही आले तर मला माझा म्हणजे तुम्ही आले होता हात दुखतो, मान दुखती, हाताला मुंग्या येतात. तिसऱ्या सेटिंगला तुम्हाला फक्त कमर दुखते, हात दुखत होता हे सुद्धा विसरून म्हणजे पहिल्या सेटिंगला आला तेव्हा तुमचा हाताला भयंकर मुंग्या येत होत्या, मान पूर्णपणे दुखत होती, स्वेलिंग पण होती आणि चेहऱ्यावर पण स्वेलिंग. दुसऱ्या सेटिंगला आले की मान दुखायचं कमी होतं, फक्त मुंग्या चालू होत्या. तिसऱ्या सेटिंगला मानेचं हाताचं काहीच नाही, फक्त तुम्ही सांगितलं की कमर दुखते. Yes. So patient has been suggested operation, and just 2 days before we have posted this review on our group. So this is what the miracle can happen, and sir has not touched her cervical within all 3 sittings. Okay. तो ये जो है ना कॉज होता है. दूसरे सिटिंग में ही मैम को रिलीफ आ गया था और उनका सब अपॉइंटमेंट भी बुक हो गया था, ऑपरेशन का सब हो चुका था. और तब उनके जो हस्बैंड है वो BNI में आए एज अ सब्स्टिट्यूट उनके कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए, और मेरा ही सेशन था उस दिन BNI में. और तब जब मैंने ये पोस्चरल डिफॉर्मिटीज कैसे कॉज होती है और रूट कॉज क्या है इस पे सेशन लिया, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि पहले मैं आपके पास आके देखता हूँ. और सर आए और ये इतना अमेजिंग रिजल्ट उनको कॉज हुआ. नहीं तो अगले ही कुछ दिन में मैम का ऑपरेशन, सेकेंड ऑपरेशन स्पाइन का होने वाला था. तो ये ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस आप देखेंगे. बट ये हम क्यों अचीव कर रहे हैं? और रिकरेंस नहीं है. सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि रिकरेंस नहीं है. ये अचीव इसके लिए कर पा रहे बिकॉज आर स्ट्रेंथ इज इनवेलिंग जेस्ट टू हील मैन. जो मैंने आपको PPT में भी मैंने वो लाइन लिखी है. सो इनवेलिंग जेस्ट टू हील मैनकाइंड में क्या हो जाता है कि हम दिल से चाह रहे हैं कि रूट कॉज को कैसे ठीक करें, हमें सच में हीलिंग ही डिलीवर करनी. दैट्स व्हाई वी कीप ऑन सर्चिंग फॉर द मोर एंड मोर ऑप्शन, मोर एंड मोर टेक्निक्स. तो आप जहां पे भी जाएंगे, जो भी सीखेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसके बारे में आपको कंसेप्चुअली हमारे पास समझने के लिए मिलेगा. अभी बहुत से लोगों ने लास्ट टाइम कैरेक्टर ही आए थे जो पिछले 7 साल से कायरोप्रैक्टिक कर रहे हैं. हैदराबाद से सर आए थे. ही जस्ट केम बिकॉज उन्होंने वेबिनार देखा, उनको लगा कुछ, वो बोले कि चलो देखते हैं कि और क्या नया यहाँ पे मुझे सीखने को मिलता है. तो उन्हें वैसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं था. और जब वो आए तो उन्होंने खुद एक 7,500-8,000 पेशेंट किए हैं. तब बहुत ही अमेजिंग उनको लगा कि ये कंसेप्ट मैंने कभी, मतलब मैंने सुने थे
लेकिन एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड ये है ये मुझे मालूम नहीं था। जैसे मायोफेशियल रिलीज भी लोग सीखे हैं, लोग फंक्शनल कपिंग भी सीखे हैं, लोगों ने बोन सेटिंग सीखा है, ऑस्टियोपैथिक आर्टिकुलेशन सीखा है, विसरल मैनिपुलेशन भी सीखा होगा। लेकिन ये सभी का जोड़ लगा के एग्जैक्टली रूट कॉज कैसे आइडेंटिफाई करते, ये थिंग जो है ना, ये नहीं समझ में आएगा इतनी जल्दी। तो इसके लिए आपके आगे के आने वाले 5 साल हम लोग बचा रहे जब आप यहाँ पे आ रहे। कोई अगर पेशेंट फ्रोजन शोल्डर या शोल्डर पेन या लेके आ रहा है, तो वो केस में सच में शोल्डर पे काम करना है कि हमें लीवर के फेशिया पे काम करना है। अगर कोई कोई बोल रहा है मुझे सीआईटी का पेन है, ये उसको किसने बताया? तो हिप से लेके पूरा पैर दर्द हो रहा है, मतलब सीआईटी का पेन है क्या? सो किडनी टोसिस अगर आपका है तो भी आपको ये पेन हो सकता है। तो ये केस में आपको वो हड्डी चटकाने की जरूरत है कि विसरल मैनिपुलेशन से किडनी मोबिलाइज करने की जरूरत है, या कहाँ कहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट हुए वो आइडेंटिफाई करके आपको मोबिलिटी प्रोवाइड करना है। ऐसे बहुत से एग्जांपल है। किसी का आई साइट का प्रॉब्लम रहता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ब्लैडर भी होता है किसी किसी केस में, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करना है। ये बहुत सी चीजें हैं। पेन सिर्फ वो नहीं है, सिम्टोमेटिक नहीं है। जहाँ पे पेन हो रहा है वहां पे ट्रीट करने की जरूरत है क्या, कि एक्चुअल रूट कॉज कहाँ पे है, ये ढूंढना बहुत जरूरी इसमें हो जाता है। तो अभी जो हम वर्कशॉप ले रहे हैं उसके बारे में भी मैंने एक इमेज अभी ग्रुप पे शेयर किया है। सो वर्कशॉप का फीस वगैरह तो मैं ग्रुप पे डाल ही दूंगा। तो फीस इज 31,500। दिन का हैंड्स ऑन वर्कशॉप रहेगा, प्लस ये देखो यहाँ पे इमेज है। प्लस उसके बाद हमारे ऑनलाइन सेशंस भी चलते स्टूडेंट्स के लिए, वो भी सेशंस रहेंगे जिसमें Q&A होता है, अलग अलग टॉपिक्स पे या फिर अलग अलग केसेस पे डिस्कशन होता है। तो ये चीज़ें भी वहाँ पे हम करेंगे, और ये सब जर्नी रहेगा पूरे महीने तक। और आप जितना जल्दी रजिस्टर करेंगे वर्कशॉप के लिए, सो इमीडिएट ऑन द इमीडिएट बेसिस हम आपको कुछ स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करना चालू कर देते हैं। वीडियोस है, जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के भी वीडियोस है। लेकिन कोई बोलेगा सर मैं तो डॉक्टर हूँ, मुझे ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी मालूम है। मालूम होने से नहीं होता है, उसका इंटरकनेक्शन क्या है, हाउ काइनेटिक चेन वर्क्स इन आवर बॉडी, ये समझना बहुत जरूरी होता है। कायरोप्रैक्टिक मतलब क्या है, बोन सेटिंग बॉडी अलाइनमेंट मतलब क्या है, हम एग्जैक्टली क्या उसमें करना चाह रहे हैं, क्या हमें अचीव करना है, ये देखना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि what topics we are going to cover: osteopathic articulation, ISTM, instrument assisted soft tissue mobilization. So only releasing the healing. So we have to tone those muscles because our body have a posture because of muscles only, correct? So we have to tone those muscles too. And then myofascial decompression, only by pressing the muscle or applying the pressure. If you are thinking that we can heal the musculoskeletal pain, so that is not a thing. So uh, many of the cases we have to decompress the muscle. Okay, so when you are decompressing, the oxygenation gets started, and the functional cupping is also key aspect in that. So it is a self-releasing protocol. So these kind of things, and then ultimately at last it's a visceral manipulation, visceral mobilization. Because when your skeletal system get disturbed, for example, if your pelvic get tilted, correct? So your all gut or your bladder, or in case of ladies your uterus, everything is set on that, करेक्ट? तो उसको उन्होंने स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, उसके ऊपर ही वो भगवान ने जो है रखे। तो जब पोस्चरल डिफॉर्मिटी हो जाती है तो आपके वो बॉडी ऑर्गन्स भी कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, उनका मोबिलिटी, मोटिलिटी, पोजीशन जो है वो
वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो जैसे मैंने बॉडी तो अलाइन कर लिया, बट वो इंटरनल स्ट्रक्चर तो डिस्टर्ब हो गया, वो भी रिजिड हो गया है, तो उसको भी रीअलाइन करना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे उसको मोबिलिटी मोटिलिटी बढ़ जाएगा, वो एक ऐसा ब्लॉक हो गए, बराबर, तो उनको भी रिलीज करना जरूरी है। तो जब वो विसरा पूरा आपका प्रॉपर ब्रीदिंग करने लगता है, इमीडिएट बेसिस पे आपको रिजल्ट मिलने लगते हैं। और विसरल थेरेपी से क्या हो जाएगा कि आपका रेड फ्लैग्स तो बहुत सारा कम हो जाएगा, और आपका स्कोप ऑफ वर्क भी बढ़ जाएगा। कि बोन सेटिंग में इन जनरली हम मस्कुलोस्केलेटल पेन वाले ही पेशेंट कर सकते हैं, बट व्हेन यू आर यूजिंग द विसरल मैनिपुलेशन थेरेपी, तो आप विसरल ऑर्गन से रिलेटेड भी इश्यूज को जो है एड्रेस कर सकते हो। तो ये यहाँ पे एक फायदा हो जाता है आपको। और फिर नीचे आप देखेंगे कुछ सर्टिफिकेशन है। दिस इज BSS डिप्लोमा इन ट्रेडिशनल बोन सेटिंग सर्टिफिकेशन। So we are the only who are providing this kind of certification, and BSS is the National Development Agency's vocational board, and they are having the valid certification. This is the only valid certification in vocational courses for the bone setting now in India. And till now, there is no any kind of guidelines or regulations come from the government for it. So on the basis of this, as like an any alternative medicine, you can practice these things. Just we have to keep few points in our mind. When patient coming to you, you must have to take the consent from the patient. ओके, उसके बाद हमें कहीं पे भी खुद को मैं डॉक्टर हूँ या फिर आपका ऑपरेशन की जरूरत नहीं है वो मैं टाल दूंगा, ऐसा आपको कुछ बोलना नहीं है। तो आपको जो आप हीलर हो, आपको हीलिंग करना है, थेरेपी देना है, कोई भी मेडिसिन उसको नहीं देना है, कंज्यूमेबल चीज नहीं देनी है। और एक्सटर्नली जो चीजें है वो सब आपको करने हैं, कंसर्न फॉर्म लेना है, हिस्ट्री प्रॉपर लेना है। तो ये चीजें आप करते हो तो कोई भी सिनेरियो रहेगा, आप टैप में नहीं आएंगे। लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। सो हम क्या करते हैं कि जब आपके पास कोई पेशेंट आता है, तो जैसे सर ने बोला कि बिजनेस, तो बिजनेस तो जरूरी है ना भाई इसमें करना। अगर पेशेंट आ रहा है, मुझे डायग्नोज नहीं हो रहा है एग्जैक्टली क्या करना है, कंफ्यूजन है, तो वो केस में हमें क्या करना है, हाउ वी कैन मैनेज द पेन। उसको तो पहले टाइम आते ही रिजल्ट आना चाहिए ना, तब जाके वो हमारा लोहा मानेगा और अगली बार आएगा। तो वो केस में भी कुछ जनरल सेटिंग्स हो रहती है जो हम आपको बता देते हैं, उतना करके उसको भेज दो। उसके बाद आपके मेंटोर जो रहेंगे उनसे कांटेक्ट करो, उसके साथ वो केस डिस्कस करो, वीकली मीटिंग में डिस्कस करो, रिपोर्ट शेयर करो। पेशेंट का कुछ गेट साइकिल रहेगा, कैसे वॉक करता है, क्या प्रॉब्लम है, वीडियो बना के भेज दो। मेंटोर से डिस्कस करके फिर उसका प्रोटोकॉल बना लो अच्छे से कि इसको नेक्स्ट सिटिंग में मुझे क्या करना है। और फिर 1 वीक बाद या 4 दिन बाद जो आएगा, तब वो प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट करो। बराबर। तो इसमें आपका क्या है कि बिजनेस भी जो है वो मैनेज हो जाता है, आपका ब्रांड भी खराब नहीं होता है, और ये भी कुछ चीजें हैं। तो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत डिफरेंस है। ओके, तो ये नीरज सर भी आपको इसके बारे में बहुत बढ़िया समझाएंगे। तो हमने ये स्टूडेंट्स में देखा है कि 2-3 मतलब 2-3 नहीं, बहुत सारे पेशेंट कर लिए, और फिर लोग भी आते हैं, डॉक्टर बोलने लगते हैं, या फिर बहुत एहसानमंद हो जाते हैं लोग, तो हमें भी थोड़ा सा क्या है, सिर पे चढ़ जाते हैं, मतलब हमारा ही खुद खुद का है। फिर हमारा एटीट्यूड में चेंज आ जाता है, और फिर हमें लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो फिर ये एटीट्यूड क्या है, फिर आपके ये एटीट्यूड आपके जो है ना दुश्मन क्रिएट करता है फिर मार्केट में। तो मैंने आज एक मैसेज डाला था ग्रुप पे, आपने देखा होगा, क्योंकि पिछले 6 महीने से क्या हो रहा है, कोई तो भी ऐसा मॉब है। मैं वेबिनार के लिए ग्रुप क्रिएट करता हूँ, बड़ी मेहनत से मैं मार्केटिंग करता हूँ, 30-40 हज़ार रुपया उसमें हमारा चला जाता है 1000 लोगों को एक ग्रुप में लाने के लिए। और कुछ बंदे वो क्या करते, कंटिन्यूअसली रिपोर्ट करके वो मेरा ग्रुप बैन बैन करा देते। अभी यही चल रहा है, बराबर। तो ये तरीके से काम करेंगे ना, तो मैं भी बैक टू द मेरे बिजनेस पे चला जाऊंगा, फिर स्टॉक मार्केट वाले, मैं ये सब मिशन मिशन पे छोड़ दूंगा। तो मेरा मोटिव क्या है कि सब चीजें जरूरी है, एलोपैथी भी उसकी जगह पे सही है, फिजियोथेरेपी भी उसकी जगह पे सही है। ऑपरेशन जहाँ पे जरूरत है करना ही पड़ेगा। किसी का ट्रॉमा हो गया, फ्रैक्चर हो गया, ब्रेक हो गया हड्डी, तो वो केस में हम क्या कर पाएंगे, मुझे तो ऑर्थोपेडिक के पास ही भेजना पड़ेगा। तो ये होलिस्टिक वे में सबको अंडर वन रूफ लाना है। इसमें BAMS भी रहेगा, BHMS भी रहेगा,
फिजियोथेरेपिस्ट रहेगा, ऑर्थोपेडिक रहेगा, जनरल प्रैक्टिशनर भी रहेगा। तो सबको मिलजुल के हमें जो है सामने वाले पेशेंट को हील करना है, बस ये हमें चाहिए। और पेशेंट पे तो मैंने काम, अभी हम लोग काम कर ही नहीं रहे हैं। हमारा अभी प्रिवेंशन पे काम चल रहा है पूरा, कि प्रिवेंटिव अप्रोच पे काम करो, क्योर पे अप्रोच मत करो। वी आर नॉट हियर टू क्योर, वी आर हियर टू प्रिवेंट। और जिसका माइंड प्रिवेंटिव माइंडसेट जिसका है वही हमारे पास आए। बिकॉज जब उसको प्रॉब्लम था इतना, तो वो टाइम पे वो किसी अल्टरनेटिव या आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर के पास नहीं गया, तब तो एलोपैथी लेना बहुत अच्छा लगा, करेक्ट। और फिर क्या हो गया कि जब अल्टीमेटली कुछ साल बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन सजेस्ट किया, तब उनको लग रहा है कि ऑपरेशन नहीं करना है, कोई ऐसा है जो बिना ऑपरेशन के ठीक कर देता है। फिर वो बंदा अपने पास आता है जिसको, मतलब जो चीज का बीज बोया गया और अभी कुछ सालों बाद उसको फल आ रहे हैं, और वो फल अगर किसी को खाने के लिए नहीं मिलता है तो प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो मेरा कहना क्या है, भाई जिसने जोता है खेत, काटने भी उसको ही दो अभी, बराबर। और जो पहले ही समय पे हमारे पास आ रहा है उसको हम क्योर कर लेंगे। सो वी आर ट्रेंडिंग द वर्ड हीलर, एचआर। अभी हम हमारे नाम के आगे भी एचआर लगाते हैं, और हमारे सब स्टूडेंट्स के नाम के आगे भी हम एचआर ही लगाते हैं। सो ये क्यों है? डॉक्टर नहीं है क्या? नीरज सर कुछ डॉक्टर है, he can put dr in front of his name, but we are focusing on the word healer, because लोगों का एक पर्सपेक्टिव बन गया है डॉक्टर के बारे में, चाहे वो कुछ भी रहेगा। कोई अच्छा प्रैक्टिस कर रहा है, कोई जानबूझ के जो है वर्स कर रहा है सिचुएशन को, तो ये तो अपना अपना जरिया रहता है प्रैक्टिस का। तो लोगों ने क्या अप्रोच लेना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो टू द हीलर, और हीलर सजेस्ट करेगा, देन ओनली आई विल गो टू द डॉक्टर। तो ये एक स्टेप जो है ना, ये सोसाइटी में इसको मराठी में पायगंडा बोलते हैं, पायंडा। तो ये एक सोसाइटी में या लोगों के जहन में आना चाहिए, तब जाके ये हीलर्स को वही वैल्यू मिलने लगेगा जो किसी ऑर्थोपेडिक को मिलता है। मैंने जब ये सर्वे किया, सब देखा, तो लोग अल्टरनेटिव वालों को पैसे नहीं देते हैं। लेकिन जब जहाँ पे सब उनकी आशाएं खत्म हो जाती है, वहां पे ये अल्टरनेटिव मेडिसिन स्टार्ट होता है, करेक्ट है कि नहीं? और वहां से वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन लोग उन्हें पैसा नहीं देते। वो 500 बोलेगा ना, तो ये 200 से शुरुआत करते। और किसी पॉश हॉस्पिटल में जाएंगे तो 2000 की सिर्फ गोलियां ही लेके आते हैं घर पे। ये अप्रोच क्यों है? किसी का पैरालिसिस ठीक नहीं हो रहा है कितने सालों से, फिर कोई मसाज थेरेपिस्ट आता है, उसकी मसाज करता है, और फिर उसको सुधार उसमें दिखने लगता है, उससे वो क्योर होता है। लेकिन वो मसाज थेरेपिस्ट को कैसे देखा जाता है, किस नजरे से? तो ये जो लोग है ना, जो दिल से ये चीजें कर रहे हैं, ट्रेडिशनली उनके पास ये सब साइंस आ रहा है, वो कर रहे हैं, सोसाइटी में जा रहे हैं, दे आर द प्योर सोल्स। और उनको एक प्लेटफॉर्म देना, उनको एलिवेट करना, इसके लिए जो है डिवाइन टच काम कर रहा है। फिर इसमें क्या हो जाता है, इनको थोड़ा सा हमें एजुकेट भी करना जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स जो है पहले जैसा नहीं रहा लोगों का। पहले लोगों का लाइफस्टाइल भी वैसा था, अभी लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। अभी 21 ईयर एज के बच्चे को भी ऑस्टियोआर्थराइटिस निकल रहा है। तो हम बता नहीं सकते किसी का बॉडी पोजीशन क्या है। तो वो केस में हम अगर जोर से झटका दे देंगे और वो डैमेज हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे? तो उसको ये तरीके से भी जाना जरूरी है। तो ये सब चीजें जब मैंने देखी, देन आई हैव taken an initiative and I have started educating नॉन मेडिकोज। और मेडिकोज तो आ ही रहे हैं, और मेडिकोज और नॉन मेडिकोज दोनों एक ही बैच में रहेंगे, बिकॉज सबके लिए ये एस्पेक्ट नया ही है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपको थोड़ा मेडिकोज हो, आपको पेशेंट को हैंडल करने का एक्सपीरियंस है, तो फायदा यही होगा कि आपके लिए रेड फ्लैग्स कम हो जाएंगे। मतलब 100 में से नॉन मेडिको अगर 80 पेशेंट कर लेगा, तो मेडिको जो है 90 पेशेंट कर लेगा। 10 रेड फ्लैग तो रहने वाले हैं, बराबर। जिसको आप डायरेक्ट मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, कि इनडायरेक्ट से कर सकते हो, या बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो 95 केसेस आप कर लेंगे। पांच पांच तो हमें छोड़नी ही है। कुछ तो छोड़ना भी सीखो। प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि कोई भी पेशेंट आया तो बस मुझे कुछ ना कुछ करना ही है उसको, मुझे किसी को छोड़ना ही नहीं है। तो ये अप्रोच में ही फंस जाता है बंदा, कहीं ना कहीं पे, गलत जगह पे।
तो भाई जिसने जो प्रोडक्ट बनाया ना उसका फल उसको ही खाने दो। तो वो सिचुएशन भी हम आपको बताते हैं कि ये है ना भाई, तो छोड़ दो, इट्स नॉट आवर कप ऑफ टी। तो ये भी हम देखते हैं। देन मार्केटिंग कैसे करना है, यहाँ से आप सीख के जाएंगे तो फिर घर पे जाके आप कैसे प्रमोशन करेंगे, आपके पास बजट नहीं है तो फिर आप अ, कैसे खुद को प्रमोट करेंगे। तो ये चीजें जो है ना वर्कशॉप से ही स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। हम वर्कशॉप में ही बोलते, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना दूसरे को वीडियो बनाने के लिए बोलते, तुरंत आप अभी से अपने स्टेटस पे डालना शुरू कर दो। मतलब उनको क्या होता है, स्टेटस ग्रुप पे डाल के इंक्वायरीज आ जाती है, भाई क्या कर रहा है ये, क्या सीखने के लिए गया है। वो बोलता है कि ऐसा ऐसा सीख रहा हूँ। तो वही से वो जाते जाते ही उसके 10 पेशेंट यही से बना के जाता है। और वहां पे जाके जब वो ये ISTM वगैरह करके अमेजिंग रिजल्ट कॉच करता है, जो दादी माँ पिछले 5 साल से कभी पालती मार के नहीं बैठी और वो तुरंत 20 मिनट की सिटिंग के बाद वो पालती मार के बैठ जाती है, उसके पेन चले जाते हैं, तो फिर वो अपने गांव में जाके और 10 लोग लेके आती है। मेरे साथ एक स्टूडेंट थे, अभी मॉर्निंग में भी उनका फोन आया था। सो सांगली से है, प्रशांत यादव करके बंदा, मसाज थेरेपिस्ट है। और बहुत क्वेश्चंस थे उनके। अल्टीमेटली उन्होंने, तब तो फीस 35,000 था, अभी आपको तो मैंने फीस भी 31,500 किया है। और उनके टाइम पे सिर्फ लंच था, अकोमोडेशन नहीं था। अभी मैंने आपको रिसोर्ट में अकोमोडेशन भी दिया है। तो वो बंदा जब सीख के गया यहाँ से, जितना सिखाया था उतना ही वैसे ही कर रहा था प्रॉपरली। यहाँ से जाने के बाद 2 महीने में लगभग 230 पेशेंट कर लिए वो बंदे ने। मतलब अभी अलग अलग गांव से लोग गाड़ी करके आते हैं उसके पास, और एक गांव में काम कर रहा है। और अभी लास्ट मंथ का ही उसका इनकम कुछ 2 लाख से ऊपर हो गया था। और कितना हुआ है उसको ट्रेनिंग लेके, अभी ये चौथा महीना चलता रहेगा, चौथा या 5वां महीना होगा। तो वो डिसिप्लिन से जो काम करता है ना, उसको रिजल्ट अल्टीमेटली कॉज होता है। और आप इसके ऊपर देखो, आज मॉर्निंग में उसका फोन आया था, तो उसको एक हॉस्पिटल में, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट के जगह पे इसको बुलाया गया था, वो पेशेंट को चेक करने के लिए और हील करने के लिए। तो एक एजेड मैडम है उनके लिए। तो ये बंदे ने क्या किया, उधर विसरल थेरेपी जो सिखाया था उसके थ्रू पहले उनके गेट्स, पाए गेट्स ओपन किए, तो उसमें उनका बहुत रिली पेन इमिडिएटली मैनेज हो गया, उनका वात जो है वो कम होने लगा ऑटोमेटिकली। तो इतना अमेजिंग रिजल्ट आया उसको। तो पेशेंट एज डिमांडेड कि नहीं उनको ही बुलाओ, ऐसा वापस। सो आज सेकेंड सिटिंग के लिए गए थे। सो ही कॉल्ड अस गाइडेंस लेने के लिए, क्या करूँ सर, ऐसे बुला रहे, उधर जाके मैं क्या बोलूँ, खुद को क्या बताऊँ। वो उनको लगेगा मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैंने बोला नहीं, आप बताओ, मैं थेरेपिस्ट हूँ, मैं हीलर हूँ, आई एम द हीलर। और क्या किया है, तो डिप्लोमा इन ट्रेडिशनल बोन सेटिंग किया है, ऐसे बताओ। सो ये सब चीज़ें होती है इसमें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। और जिन्हें रजिस्टर करना है बैच के लिए, तो नंबर मैं आपको शेयर करता हूँ चैट पे, स्लाइड भी शेयर कर दूंगा। सो आपको उस पे ही पेमेंट करके आपका रजिस्ट्रेशन करना है। जस्ट ए मिनट। बाकी सब तो आपने वेबसाइट पे देखा ही होगा। ओके, सो दिस इज द नंबर। तो आपको 2,000 रुपीज़ अभी पे करके है ना सीट कंफर्म कर लेना है। और अगले 2 दिन में रिमेनिंग पेमेंट जो है 7,000 का आप करते हो, तो फिर आप डेट वगैरह भी चेक कर लेना आपके। तो आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लेक्चर्स मिल जाएंगे। और जो वेबिनार में रजिस्टर करते हैं उनके लिए डिस्काउंट होता ही है। तो आपको 1,500 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट इसमें हो जाएगा। आज अगर आप 2,000 रुपया भर के करते हो तो आपके लिए वो 30,000 हो जाएगा। और आप ग्रुप में आते हो, तो आप 2 लोग आते हो, 3 लोग आते हो, तो 2+ जितने भी आते हैं 500 एक्स्ट्रा बेनिफिट हम आपको दे देंगे। बिकॉज वी हैव इंक्लूडेड द अकोमोडेशन, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर। सो यहाँ पे थोड़ा थीन मार्जिन पे काम होता है। ओके, सो ये है। तो रजिस्टर करो बैच। हम लोग 25 से 30 लोगों का बैच लेते हैं और फिर क्लोज कर देते हैं। और जितना फ्रिक्वेंटली पहले होते थे, अभी ट्रेनिंग्स उतने नहीं हो पाते, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड हेल्थ कैंप्स ऑल ओवर अक्रॉस महाराष्ट्र फॉर पेशेंट्स आल्सो। तो उसमें हेल्थ कैंप, क्लींजिंग कैंप, ह्यूमन गैरेज के 1 डे के कैंप, अभी गोवा में हमने कैंप रखा है, हेल्थ कैंप रखा है जनवरी एंड में। तो यहाँ पे भी हमारे स्टूडेंट्स को वी यूज टू कॉल देम
to help us or to enhance their skills. तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाद में फिर आप आपके एरिया में अगर कैंप लगाते हो तो भी डिवाइन टच जो है अपना टीम भेज देता है। वी हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ फ्रेंचाइजी आल्सो, जिसमें आपका मार्केटिंग से लेके आपको सपोर्ट देना, सेंटर पे आके टीम भेजना, ये सब चीज़ें भी हम करते हैं। लेकिन वो आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हो, जब हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम कोई भी पेशेंट आपको रेफर कर देंगे तो आप वो सही से ही करेंगे, देन ओनली वी गो फॉर दैट ऑप्शन। तो ये भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, इसके आके जाके भी बहुत सारी चीज़ें डिवाइन टच करता है। तो वो जब आप कनेक्ट करेंगे तब धीरे धीरे हम ये सब ऑप्शंस जो है एक्सप्लोर करेंगे। ओके, so anyone have any query, you can unmute. What is going in chat? Continuously buzzing. The person Awes Momin, he called himself a doctor. He put doctor in front of his name. So it is all okay. All our feelings. Share some techniques. So all we feel to join this course. So how can I share some techniques, sir? तो ये ऐसा है क्या टेक्निक, क्या शेयर करने की चीज है क्या? टेक्निक टेक्निक ये फील करने की चीज है। यहाँ पे 3 दिन क्यों आना है? 3 दिन में कोई एक्सपर्ट नहीं बनता, मुझे मालूम है। लेकिन आज यूट्यूब पे भी है ना, कार चलाने का सीख रहे लोग, सही है कि नहीं? सीख रहे हैं ना? तो यूट्यूब देख के कार चलाना सीख जाते हैं क्या? हाँ, ये फायदा होता है कि यूट्यूब देख के आप ड्राइविंग क्लास में 2 दिन भी जाएंगे ना तो भी आप कार चला लेंगे। तो यही चीजें हम यहाँ पे कर रहे हैं कि थेरोटिकल हम आपको ऑलरेडी कवर कर रहे हैं सब चीजें। आपको ये वर्कशॉप के वीडियो पहले ही मिल जाएंगे। ओके, वो आप देख के आओ, लेकिन 3 दिन वहां पे आके फुल ऑन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस रहेगा। 10-10 लोगों का ग्रुप बनाते हैं हम लोग। एक टेक्निक को आप 9 लोगों के ऊपर परफॉर्म करते हो। जब एक ही टेक्निक को आप डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन बॉडीज पे परफॉर्म करते हो, देन यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, यू विल फील दैट दोज थिंग्स। विसरल थेरेपी करना है तो यू हैव टू फील द बीट्स ऑफ liver, you have to feel where is that organ located and how it get dislocated. So ये सब चीजें ऐसे थोड़ी ना डेमोन्स्ट्रेशन में कर सकता हूँ, ये आपके बॉडी पे में करके बता सकता हूँ। आप आ जाओ नास्तिक। तो ये सब जो है ना अंडर वन रूफ नहीं मिलेगा। और बहुत सारे टेक्निक्स ये हमारी ही है जो एक्सपीरियंस से हमने डेवलप किए हैं, बिकॉज वी यूज टू केटर द नॉन मेडिकल ऑल्सो। बट वो ऐसी टेक्निक है जो डायरेक्ट मैनिपुलेशन से भी ज्यादा इफेक्टिव है, इनडायरेक्ट होके भी। तो ये तो मैं डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकता। और यूट्यूब चैनल में मैंने ऑलरेडी पेशेंट करने के बहुत सारे वीडियो डाले, उसमें से आपको बहुत सी टेक्निक चुराने के लिए मिल जाएगी। तो वो फ्री उधर से बटोरो, आप इधर टाइम वेस्ट मत करो। Yes, sir. Great. I am glad, Rajesh sir. If you are coming with your wife, then you are on the correct track, sir. Because you can cater the female patients also very well. और जब दोनों सीख लेंगे ना, तो जिस इसमें हस्बैंड वाइफ दोनों आ जाते हैं ना एक ही प्रोफेशन में, वहाँ पे ग्रोथ तो डेफिनेटली है, और स्पेशली हीलिंग में तो है ही। तो आप दोनों आते हो तो मैं बढ़िया से आप दोनों को डिस्काउंट भी कर दूंगा, डोंट वरी। अरे वा, पालघर मधून आज सर तुम्ही अजून छान. मी वाड्याचा आहे सर, आणि माझं मेरा एजुकेशन ही पालघर में हुआ है, नवोदय विद्यालय में. ये सर राजेश सर. सो आप जो है ना रजिस्ट्रेशन कर दो आप दोनों का, तो आप दोनों के लिए रूम भी सेपरेट बुक हो जाएगा वहाँ पे. सर का बोलू आधार कार्ड शकतो भी का दे मी? देना. सर बोलू और शकतो का आज तुमचे? रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो दोनों का मिला के 3000 डिस्काउंट भी आपका हो जाएगा. सर बोलू शकतो का? हेलो. ओके. हाँ, बोला एनीवन ना हैव सर, बोला एनी ना. क्वेश्चन, यू कैन अनम्यूट. सर बोलू शकतो का? बोला ना सर.
हो हो हो. हो म्हटलं मी पालघरमधनंच आहे. मी आणि योगा नॅचरोपॅथी थेरपिस्ट आहे. ये गिव अवे है। आज जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको और एक बोनस है। आपको ये फंक्शनल कपिंग का हमने कोर्स बनाया है पूरा। हम्म. तो ये कोर्स हम क्यों डिजाइन कर रहे हैं? आर मोटिव इज टू गेट हील एट होम प्रोटोकॉल, जो देख देख के हर कोई अपने आप को या दूसरे को हील कर सकता है। तो इसमें हमने ये फंक्शनल कपिंग के पूरे प्रोटोकॉल डाल दिए, पूरे नेक पेन से लेके हील पेन तक पूरे। तो ये देख के, और ये बहुत इफेक्टिव है। हाँ, ये कहीं पे भी आप जाके करेंगे सीखेंगे तो आपको ऐसे प्रोटोकॉल नहीं मिलेंगे। फ्रॉम द एक्सपीरियंस वी हैव डेवलप्ड दिस ऑल दिस थिंग्स। तो ये सार है सब चीज़ों का कि क्या करना है कैसे करना है, और आपको इससे अमेजिंग रिजल्ट आएगा। तो ये 12,500 का हमने कोर्स रखा है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। हम इसको 8,500 में देते हैं। ऑनलाइन में भी ये सेल होता है। तो मैं आज जो रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, वो सब लोगों को ये लेक्चर से वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही आप नेक्स्ट 10,000 का एक पेमेंट हमें कर देंगे, पूरा करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 10,000 का एटलीस्ट कर देंगे, सो विल गेट यूर 19,000। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स है उनका जो ग्रुप बना है जिसमें वर्कशॉप के एक्चुअल वीडियोस पूरे 3 दिन के वर्कशॉप के शेयर किए हैं, वो सब वीडियोस का एक्सेस भी आपको दे दूंगा। मतलब एज लाइक अ मूवी आपको गो थ्रू करने। और जब वो आप वो पूरा देख के उस पर टाइम कंज्यूम करके फिर आएंगे ना, तो आपका पूरा फोकस जो है वो प्रैक्टिस पे ही रहेगा। करेक्ट। तो ज्यादा से ज्यादा आप उसमें से ले पाएंगे। तो आई हैव बीन फीचर्ड ऑन G24 ऑल्सो। तो अभी अभी ये चीजें होने लगी है। पहले कोई नहीं समझता था मैं क्या बोल रहा हूँ। लोग बोलते थे ये क्या प्रोफेशन चॉइस कर लिया, लोगों को समझ में आएगा क्या, ये लोगों की जरूरत नहीं है, ये दीवार पे पैर सिर पटकने से कुछ फायदा नहीं है। लेकिन अभी सबको ये समझ में आ रहा है स्टेप बाय स्टेप। सर नो नेक्स्ट बैच सर, दिस इज द ओनली बैच एंड इनकैश इट। ओके, आगे का किसने देखा है? ये है, वो कर लो। हेलो सर, हाउ आर यू? ओके, ओवरऑल पैकेज क्या है सब कोर्स का? ओवरऑल फीस इज 35,000. We have discounted it to the 31,500. It will cover a 3 days hands-on practical workshop in a resort near Trambakeshwar. And within that, we are going to cover all three, working on all three system: visceral system, skeletal system, muscle system. And we are also going to do all these things on your body also. ओके, सो उसमें आपका हीलिंग भी हो जाएगा, और वहाँ पे हम आपका सबका फुट स्कैनिंग भी करेंगे। तो आपको भी पता चलेगा कि मेरे बॉडी में क्या पोस्चरल इम्बैलेंस है। और रूट कॉज हीलिंग का यह अप्रोच रहेगा। और आफ्टर द वर्कशॉप, बिफोर द वर्कशॉप, तो हम आपको अभी से ही रजिस्ट्रेशन के बाद सब स्टडी मटेरियल्स देना स्टार्ट कर देंगे। वो लगभग 7 से 8 घंटे का पूरा स्टडी मटेरियल आपको गो थ्रू करना है 2-3 बार। फिर उसके बाद आफ्टर द वर्कशॉप भी आपको 2 मंथ का मेंटोरशिप रहेगा। ड्यूरिंग द वर्कशॉप ऑल्सो यू विल हैव अ मेंटोर। जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे, कुछ स्टेप एक्सपर्ट ने सिखाया, तो जनरली क्या हो जाता है कि जाओ अभी आप करो, और वो एक्सपर्ट जो है वो चला जाता है। बराबर, ऐसे यहाँ पे नहीं होगा। आप एक दूसरे के बॉडी के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो आपको मेंटोर्स यहाँ पे आपके साथ खड़े रहेंगे, जो आपको गाइड करते रहेंगे क्या आपका पोजीशन रहेगा, कैसे क्या सब चीजें। और आफ्टर दैट ऑल्सो दैट मेंटोर विल कंटिन्यू विथ यू। आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं लाइव, तब सपोर्ट के लिए। और एनी ऑफ द टाइम आपको लगता है कि सर मुझे 2 दिन आना है, प्रैक्टिस करना है, एनी टाइम यू आर ऑलवेज वेलकम। आप हमारे सेंटर पे आके 1 दिन 2 दिन आप अगेन वो सब रिवीजन करके जा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपको सेशन रिपीट रिपीट करना है, देन ऑल्सो आप अगले 6 महीने तक कभी भी कोई एक सेशन जो है आप रिपीट कर सकते हो।
ओनली अकोमोडेशन चार्जेस यू हैव टू पे, और उसके लिए हम 5 सीट जो है रिजर्व रखते हैं, बराबर, रिसोर्ट में। सो दिस काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन, अगर किसी के पास कुछ भी सर्टिफिकेशन नहीं है, आपको अगर चाहिए तो BSS डिप्लोमा इन ट्रेडिशनल बोन सेटिंग, ये 1 साल का कोर्स है जिसका कॉलेज खुद 30,000 रुपीज चार्ज करती है, और हम एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट आपको जो है 7,500 इसमें पे करना होता है आफ्टर 1 मंथ। ओके, तो ये सर्टिफिकेट जो है उसमें भी आपको हम वो सिलेबस कवर करके फास्ट ट्रैक बेसिस पे प्रोवाइड कर देते हैं। This is certification of visceral manipulation. This batch we have conducted. So we have invited the world's best visceral osteopath to conduct our first training session on visceral manipulation. And very soon we are going to re-invite sir for the craniosacral therapy workshop for our students only. ये वर्कशॉप में भी सब हमारे स्टूडेंट्स ही है, उनके लिए ही हमने ये रखा था। तो आप अगर देखेंगे ना, कायरोप्रैक्टिक, मायोफेशियल रिलीज, देन ISTM, विसरल मैनिपुलेशन, ये सब चीजें एक एक करके सीखने के लिए हमें और हमारे स्टूडेंट्स को भी जो पहले से है लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए लग गए। और अभी क्या हो गया है कि ये सब हमारे पास आ गया है, हमने परफॉर्म भी कर लिया है, तो अभी अंडर 1 रूप आपको ये सब है ना ओनली 30,000 में मिल रहा है। ओके, तो यू आर टू मच फॉर्चुनेट। मतलब कल ही मैंने और नीरज सर ने स्टेटमेंट निकाला कि उनके कितने पैसे गए हैं अभी तक ट्रेनिंग में, तो कुछ 6 लाख रुपए का सब हिसाब निकला, और आपको वो सब गीता का सार जो है ना वो यहाँ पे मिल रहा है, और लाइफ टाइम सपोर्ट भी मिल रहा है। सो एनकैश दिस अपॉर्चुनिटी, और उसमें कोई कंफ्यूजन मत पालो। अगर 4 जगह पे जाके आप पैसे देने वाले हो तो मैं बोलता हूँ कि पैसे बचाओ, यहाँ पे कुछ पैसे ज्यादा भी देने पड़ रहे हैं, लेकिन नॉन मेडिकोज को विसरल मैनिपुलेशन कोई नहीं सिखाएगा, ये लिख लो आप। और आपकी जैसे आसान भाषा में आपको समझ में आए ये तरीके से माय फेशियल का कंसेप्ट भी कोई नहीं बताएगा। तो 4 जगह जाके आओ, भले घूम के आओ। मैं आपको रिव्यू दिखाता हूँ ना, अभी वो सर ने रिव्यू दिया, तो उन्होंने कोई ऐसा सेशन नहीं छोड़ा है जो अटेंड नहीं किया है, कोई उनको ऐसा ट्रेनर मालूम नहीं है, ट्रेनर नहीं है जो उनको मालूम नहीं है। अभी आज ही वीडियो पोस्ट किया है। सो ही इज फ्रॉम हैदराबाद, सो वी आर प्लानिंग विथ हिम। उनका हैदराबाद में बहुत बड़ा सेंटर है, तो वहाँ पे वो 30-40 लोगों को अकोमोडेशन भी दे सकते हैं। ये है सरकार। Hello, sir. So, how was your experience about workshop? My experience was really great. I expected something else, but here all the faculties are so knowledgeable and I think they are able to answer our queries. And I can say that in spite of having done 42 courses, this has given me at least a 25% value addition to my knowledge. Yeah. Which is very important and which will be very useful for my patients whom I can treat early and send them home. Can you elaborate about your profession and experience, sir? Yeah, I am Nagaraj and I am a chiropractor and a manual therapist, and I also do acupuncture, Tung acupuncture. I have a clinic in Hyderabad, Sainikpuri, Hyderabad, and I have done so far in the last 5 years 7,000 odd patients I have treated, and yet every day we treat on an average between 25 and 30 patients in 4 hours session. We have a 9 to 1 clinic in that we treat. Apart from this, I do lots of service for the elderly people and I run an NGO. So you can go to my YouTube channel. I'll share the link with you. Just visit this channel, join it, and go through the videos of patient testimonial, students testimonial, my previous webinar, everything you will get on it. And on Instagram, I have series that how divine the start, what kind of aspects we are keep on adding to our system, how
those aspects are working together and causing a magical results. So everything I have explained, and now we have started the service since few months, the corporate wellness service, because सिर्फ हम आपको सिखाते नहीं है, आपके हाथ को काम भी मिले ना, इसके लिए भी हम काम करते हैं। तो अभी मैंने रिसेंटली क्रॉम्पटन ग्रीव्स है, उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा है, थाइसन क्रप है, जैसे जो ब्रांड है। और अभी कल मेरा एक सेशन हुआ डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के 30 एम्प्लॉय का, हमने वहाँ पे सेशन लिया। तो कंपनीज में तो 500 एम्प्लॉय, 1000 एम्प्लॉय ऐसे कवर करने होते हैं। अभी आईटी कंपनीज में भी हमारी आज ही मेरी बात हुई है। तो ये सब भी चीज़ें हमने इनिशिएट किए हैं यहाँ पे। तो इसमें भी आप कोलैबोरेट तो कर ही सकते हो, बट ये सब चीज़ें जो है आपके एरिया में भी हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे। अगर आप प्रॉपर अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो और हमें लगता है कि चलो इसको उठाना है, तो फिर हम आपके साथ में ये प्रैक्टिसेस वहाँ पे भी कर सकते हैं, या फिर वी विल गो इनटू द फ्रेंचाइजी मॉडल, तो ये भी हम कर सकते हैं। और भी एस्पेक्ट है, आप जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा। पंचगव्य में काम है, कैंसर के पेशेंट पे भी बहुत बढ़िया काम हो रहा है। पिछले ऐसे कुछ एक्सपर्ट्स हमारे टीम में है, या फिर अंडर वन रूफ हमने लाए हैं कि जिन्होंने 12-12 सीट्स जो है ब्रेन में, वो कुछ ही दिनों में क्लियर कर दी है पंचगव्य से। नाड़ी चिकित्सा है, तो स्पिरिचुअल काउंसलिंग में वो बाकी हीलिंग है। मैनिफेस्टेशन पे भी अभी आप आएंगे तो हम आपको बताएंगे उस पे काम कैसे होता है। तो बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे सीखने मिलेगी। तो मोटिवेशनल कोच या स्पीकर, बिजनेस कोच में भी आप पैसे मत गवाओ, वो भी यहाँ पे फ्री में सब नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो कपिंग थेरेपी छोड़ के क्या फीस होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सब सीखना जरूरी है। आपने जो भी बाहर सीखा है ना, उसका सेम अगर यहाँ पे मिला ना, तो पूरा फीस आप वापस लेके जाओ। आपको लगता है मुझे कप लगाते आता है मतलब कपिंग आ गया है, ऐसा नहीं है, ये बहुत वास्ट है। और यहाँ पे जो सीखेंगे वो अलग ही रहेगा, और वो सब सीखना जरूरी है। ऐसा नहीं है आधा अधूरा टुकड़ा टुकड़े में सीखा, नहीं। वी हैव टू जनरेट हीलर्स हु कैन हील द रूट कॉज। ओके, तो सब चीजें आना जरूरी है यहाँ पे। तो ओवरऑल 3 दिन का वर्कशॉप ही अटेंड करना पड़ेगा, उसका वही फीस है। सर इसमें नोट्स क्या है, इसमें आपको वीडियोज ही मिल जाएंगे, बाकी तो पीडीएफ हम वैसे शेयर करते ही है। बट आप जो वर्कशॉप वहाँ पे चलेगा ना, उसका एक डेडिकेटेड बंदा रहेगा जो प्रॉपरली वीडियो कवर करता रहेगा, और इमिडिएटली वो वीडियोज आपके ग्रुप पे भी आते रहेंगे, सो दैट ड्यूरिंग द प्रैक्टिस यू कैन रेफर दोज वीडियोज। तो वो सब आपको वीडियोस के फॉर्म में मिलेगा। बाकी ऑनलाइन सेशंस हमारे चलते हैं, उसमें आप ज्वाइन करो। और पीडीएफ तो आपको जो सेशन वहाँ पे हम प्रेजेंटेशन में जो जो दिखाएंगे आपको प्रोजेक्टर पे, वो सब चीज़ें आपको सॉफ्ट कॉपीज वहाँ पे मिल जाएगी, कोई बात नहीं है। उसके अलावा आप स्टडी करना चाहते हो तो एडवांस भी चीज़ें हम आपको मटेरियल देते रहते हैं 1-to-1 बेसिस पे। ये लीवर डिटॉक्स से भी हमारे सेशंस रहते हैं। इसका भी हमने अभी रिसेंटली ट्रेनिंग लिया, क्लींजिंग थेरेपी का। Did you know 80% of diseases are created in your liver and gut? नमस्ते, मैं आशीष सूर्यवंशी, डायरेक्टर ऑफ डिवाइन टच हीलिंग सेंटर द ह्यूमन गैरेज, आपके लिए लेके आया लिवर डिटॉक्स प्रोग्राम। यह इतनी असरदार थेरेपी है कि एक ही रात में आप आपके गॉल ब्लैडर के स्टोन्स, इंटेस्टाइन में जमा हुआ सारा कचरा और बॉडी के टॉक्सिन्स को आपके शरीर के बाहर पाएंगे और खुद को बीमारियों से मुक्त महसूस करेंगे। वात, पित्त, लैक ऑफ एनर्जी, स्ट्रेस, कॉन्स्टिपेशन, जोड़ों का दर्द, ऐसी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। लीवर की कार्य क्षमता बढ़ेगी और आप खुद को हल्का और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। अगर आप ओवरवेट हो तो थेरेपी के बाद कुछ ही दिनों में आपका वजन आपको कम होता नजर आएगा, और एलडीएल कोलेस्टेरॉल जो हार्ट अटैक की जड़ है, उसके परिमाण में भी गिरावट लाने में ये थेरेपी आपकी मदद करेगी। लिवर क्लीनिंग से शुरू करते हुए थायराइड क्लींजिंग, हार्ट क्लींजिंग, लंग्स क्लींजिंग, गॉल ब्लैडर, स्टोन एंड एसिडिटी क्लींजिंग, यूटेरस एंड फर्टिलिटी क्लींजिंग, और सबसे महत्वपूर्ण जॉइंट क्लींजिंग, जो आपके जोड़ों में जमे वात को बाहर निकालने में मदद करेगी।
जैसी क्लींजिंग प्राकृतिक चीजों द्वारा आपके घर से बिना किसी डाइट और एक्सरसाइज से करवाई जाए। तो आइए इस नैसर्गिक चिकित्सा द्वारा खुद को एक स्वस्थ जीवन प्रदान करें, केमिकल, स्टेरॉइड्स और सर्जरी से अपने आप को दूर रखें। हमारे एक्सपर्ट से डिटॉक्स के बारे में जानकारी देने के लिए और आपके प्रॉब्लम का समाधान हमसे डिस्कस करने के लिए अभी हमारे ऑनलाइन सेमिनार के लिए रजिस्टर करें। इस सेमिनार में आप उन पेशेंट्स को भी सुन सकते हैं जिन्होंने अपना जीवन इस थेरेपी द्वारा बीमारी और मोटापे से मुक्त किया है और उनसे फेस टू फेस आप बात भी कर सकते हैं। तो देरी न करते हुए अभी रजिस्टर करें और अपने बॉडी की सर्विस हमारे ह्यूमन गैरेज से करवाएं। नमस्ते, मैं आशीष सूर्यवंशी, डायरेक्टर ऑफ डिवाइन टच हीलिंग सेंटर। तो मिलते हैं हमारे ऑनलाइन सेमिनार में। ये एक अलग एस्पेक्ट है। अभी मेरे स्टूडेंट्स के लिए मैंने क्रेनियोसैक्युलर थेरेपी का भी सेशन में ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तो आपको वो भी मिलेगा। ये बैच में आते हो तो फरवरी के सेशन में भी आपको आने के लिए मिलेगा। Sir, there is no doubt, but I have to speak. Can I? Yes, ma'am, definitely. You can start your video also. Okay. Yeah, hello, hi, hello everyone. I'm Dr. Bhakti. I'm based in Pune. Please don't hesitate to do this course. It's an excellent course. Without any second thought, you can say it's a blindfolded eyes, you can go for this course. And really, I have accepted these courses. I have also tried for the other courses. So after you, after बाद, and really, there no one teaches like Ashish sir and their team. Without any second thought, really go and it is. So there is no doubt, but I have to speak. Can I? Yes, ma'am, definitely. You can start your video also. Okay, guys, you can go for this course. And really, I have accepted these courses. I have also tried for the other courses. So after you, after बाद, and really, there no one teaches like Ashish sir and their team. Without any second thought, really go, and it is really beneficial. You won't believe. Course करने के बाद, within a month, we started our clinic. Within a month, 2 months, we started our clinic. And per month, we are earning 1 lakh. Great. Per month, we are earning 1 lakh. It's directly cash, and patients are so satisfied. Right now, just Rupesh sir said it. Within, you can say, in 3-4 months, the patients are getting really satisfied. Those who are having a problem since 8 years, 10 years, you can say even 24 years pain, 14 years pain, they are getting it relief. Right now, the patients are calling. We are not waiting for the patients. Patients are calling us and they are booking an appointment, sir. And it's so, आपने हमारे हाथ में just you can say magic दे दिया. मतलब जिन लोगों को ऐसे फील होता है ना कि अरे we are not valid, हम कैसे इस कोर्स को करें. So जो कोर्स हमें बाहर जाके करना जरूरी है, वो हमें अगर Okay, so we'll stop here. Anyone have any question? You can ask. Yes, I'll stop recording now. Some questions are coming in a chat. Better if you unmute your mic and start your camera.